باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم تمام مقدسین کی عید مناتے ہیں اور آج ہم مکاشفہ اس کا 7واں باب اور اس کی آیات 9 اور 10 کو سنیں گے۔ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے اور برے کی۔ آج ہم تمام مقدسین کی عید کا جشن مناتے ہیں۔ یہ جشن ان تمام مردوں اور عورتوں کی عزت اور یاد میں منایا جاتا ہے جو خدا کی آسمانی بادشاہی میں ہے۔ اگرچہ ان تمام روحوں کو بھی یاد کیا جاتا ہے جو آسمان میں ہیں، لیکن آج خاص طور پر ان لوگوں پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے جنہوں نے زمین پر غیر معمولی طور پر مقدس، پاک اور پوتر زندگی گزاری، اور یہ کہ کلیسیا نے انہیں مقدسین کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ان افراد نے گہری دعا اور صوفیانہ اتحاد کے ذریعے شہادت یا مذہبی اظہار ثانی کی دیگر شکلوں کے ذریعے خدمت کے کاموں کے ذریعے، جیسے کہ ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنا یا ایمان کی تعلیم دینے کے ذریعے خدا کی عزت اور تعظیم کی۔ کچھ مقدسین طاقتور مبلغین تھے اور کچھ نے معجزاتی کرشمات دکھائے، کچھ رہنما تھے، کچھ نے خاموشی میں زندگی گزاری اور کچھ نے جلاوطنی کا تجربہ کیا یا اپنے ایمان کے لیے اہم قربانیاں دیں۔ ان مختلف طریقوں سے ان مقدسین نے اپنی زندگی کے دوران خدا باپ کی تمجید کی۔ مقدسین کو عزت دینے سے ہم ان کی زندگیوں کے ذریعے خدا کی تعظیم کرتے اور اسے جلال دیتے ہیں۔ ان کی تعظیم کرنے سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں جس نے انہیں مقدس بنایا۔ یہ اجتماعی تقدیس جنت کی ابدی سنجیدگی کا پیش خیمہ ہے اور آسمان پر تمام مقدسین کی زندگیوں کے ذریعے خدا کا ابدی جلال ظاہر ہوگا۔ جنت میں تمام مقدسین کی خوبیاں، قربانیاں، دعائیں اور بے لوث خدمت ایسی روشنیوں کی طور پر پھیلتی ہے جو ہمیشہ کے لیے خدا کی عظیم رحمت اور بھلائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ جنت میں ہر مقدس کی زندگی خدا کی حمد اور عبادت کا ایک مسلسل گیت بن جاتا ہے اور فرشتوں کے گروہوں کے کورس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ مقدسین نئے آسمانوں اور نئی زمین کے لیے خدا کی حفاظتی دیکھ بھال میں حصہ لیں گے۔ مقرب فرشتوں اور نگہبان فرشتوں کے ساتھ مقدسین خدائی تحفظ اور اس کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ مسلسل رابطے کا جشن منائیں گے۔ آج کا آسمان نیز دنیا کے اختتام پر نیا آسمان اور زمین ان تمام چیزوں کے مسلسل جشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو خدا اپنے جوہر میں ہے اور جو کچھ خدا نے ان لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہے جنہوں نے اس کے فضل کا جواب دیا ہے۔ مقدسین کی تعظیم کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے دعوت بن جاتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح مقدس زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ مقدسین کی زندگیاں ہمارے لیے مثالی ہیں۔ ان کی زندگیاں تقدس کی کھلی کتاب ہیں جسے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں عظیم مقدسین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، جیسے کہ مبارک کنواری ماں مریم، مقدس فرانسس آف اسیسی، کیتھرین آف سینا، ٹریسا آف اویلا، اگسٹین آف ہپو اور
मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस। इन मुकद्दसीन की जिंदगी का मुतालिया और उनकी जिंदगियों पर गौर किया जाना चाहिए ताकि हम उनकी मिसाली जिंदगियों से सीखें और उनकी तरह पाकीज़गी की राह पर चलना शुरू करें। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जो जमीन पर हैं, आसमान से ये मुकद्दसीन हमारे लिए ताकतवर सफारशी बनते हैं। ये सच है कि खुदा फरिश्तों और मुकद्दसीन की सालसी को इस्तेमाल किए बगैर हमारे साथ बराह रास्त बात कर सकता है, लेकिन खुदा सानवी इसबाब को इस्तेमाल करने का इंतखाब करता है, जबकि खुदा खुद हमेशा तमाम फजल का पहला और मंबा रहता है। मुकद्दसीन और फरिश्ते उन सानवी इसबाब में से हैं जिनके जरिए खुदा अपने फजल की सालसी करने का इंतखाब करता है। इसलिए हमें उनकी शफायत पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा करना हमारे ईमान का एक अमल है जिसके जरिए हम खुदा पर अपने इत्काद का दावा करते हैं और मुकद्दसीन और फरिश्तों को उसके आलात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज की ईद की बुनियाद और जड़ें कलीसिया के इब्तदाई दिनों में पेवस्त है। नए अहदनामे के जमाने में भी शोहदा को ईमानदारों की जमायत की तरफ से इज्जत और ताजीम दी जाती थी, जिसका आगाज मुकद्दस स्टीफन डीकन से हुआ जो पहले शहीद थे। कलीसिया को पहली सदी के दौरान ही रोमी शहनशाहों के हाथों जुल्म सितम और मौत का सामना करना पड़ा और कलीसिया ने उनकी शहादत का एहतराम किया। सन 64 में शहनशाह नीरू पहला शहनशाह था जिसने रोम में मसीहों पर जुल्म सितम को मुनज्जम तौर पर ढाना शुरू किया। मुकद्दस पतरस, पालूस और बहुत से दूसरे लोगों की जानें ले ली गईं। रोम में इस पहले जुल्म सितम के बाद दूसरे रोमी शहनशाहों ने पूरी सल्तनत में तरह तरह के जुल्म सितम और इजार सानियों को मसीहों पर ढाना शुरू किया। 303 से 311 तक शहनशाह डियोक्लेटियन के दौर में बदतरीन जुल्म सितम हुआ। इस जुल्म सितम के दौरान गिरजाघरों और मुकद्दस किताबों को तबाह कर दिया गया। मसीहों ने अपनी जायदादें, कानूनी हकूक और जानें खो दी और जो हलाक नहीं हुए उन्हें कैद कर दिया गया और अजियतें दी गई। कुछ का अंदाजा है कि डियोक्लेटियन के जुल्म सितम के दौरान 3500 के करीब मसीही शहीद हुए। अगरचे सही तादाद की तस्दीक करने का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन इससे भी बढ़कर ईमानदारों को शहीद किया गया। 4वीं सदी में शहनशाह कुस्तुंतीन अव्वल ने खुद मसीहत को कबूल किया। इसके जरिए 313 में मसीहत को कानूनी हैसियत देने के बाद उसने शोहदा के नाम पर गिरजाघर और यादगारें बनाना शुरू कर दी। शोहदा के लिए अवामी अकीदत परवान चढ़ने लगी। उनकी कब्रें गिरजाघरों, जियारतगाहें और दुआ की जगहें बन गईं। 13 मई 609 को पोप बोनिफिस चहारम ने रोम में पेनिथियोन को, जो कि एक मंदिर था, एक गिरजाघर में तब्दील कर दिया, जो मुबारक कुंवारी मरियम और तमाम शोहदा के लिए मखसूस किया गया था। उसकी सालाना तकरीब ने मुबारक कुंवारी मरियम और तमाम शोहदा को भी एजाज बख्शा। 1 नवंबर 731 को पोप ग्रेगरी III ने मुकद्दस पतरस बसिलिका में एक छोटा सा चर्च तमाम मुकद्दसीन के लिए मखसूस किया और यह चर्च रसूलों, शोहदा, इतराफ करने वालों और पूरी दुनिया के तमाम मुकद्दस मर्दों खवातीन के लिए मखसूस किया गया। इससे मुकद्दसीन की याद को शोहदा से बढ़कर उन तमाम लोगों के लिए भी वसी किया गया जो मुकद्दस जिंदगी गुजारते थे। 844 में पोप ग्रेगरी चहारम ने
1 नवंबर की ईद के जश्न को आलमगीर सतह तक बढ़ा दिया। 1484 में पोप सिक्सटस चौथम ने 1 नवंबर को पूरे आलमगीर चर्च के लिए मुकद्दस दिन करार दिया और इसकी पैरवी के लिए एक बेदारी का दिन और 18 शामिल किया, जिससे इस ईद के जश्न को मजमूई तौर पर 9 दिन का बना दिया गया। इसे हैलोवीन भी कहा जाता था। बदकिस्मती से मौजूदा दौर में बहुत सी जगहों पर हैलोवीन ने अपनी मसीही और मुकद्दस कदर और तवज्जो खो दी है और अब ये एक दुनियावी और यहां तक के गैर मसीही जश्न बन गया है। जैसा कि हम तमाम मुकद्दसीन के एहतराम और इज्जत में आज ये याद और ईद मनाते हैं, इस हकीकत पर गौर करें कि हमें भी उनकी सोहबत और कुर्बत में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। जमीन पर रहते हुए हम जिस हद तक मुकद्दस बनते हैं, उसी हद तक हमारी जिंदगी खुदा के अब्दी जलाल के लिए होगी। तकद्दस की गहरी गहराई तलाश करें। सिर्फ फजल की हालत में रहने की कोशिश करें, बल्कि फजल की कसरत तलाश करें। नेकी में बढ़ने की कोशिश करें। तमाम गुनाहों को, हत्ता के छोटे गुनाहों को भी अपनी जिंदगी से निकाल दे। जितनी बार हो सके दुआ करें। मुकद्दसीन की जिंदगियों के बारे में पढ़ें। कलाम पाक पर गौर करें। सखावत और मोहब्बत से काम लें। सबको मुआफ कर दें और वो सब कुछ करें जो आप एक अजीम मुकद्दस बनने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मुकद्दस बने। आसमानों में तमाम मुकद्दसीन इस मुकद्दस गवाही के लिए जो आप में से हर एक ने अपनी जिंदगी के जरिए कलीसिया को दी है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और उन नेमतों और फजाइल पर खुश हैं जिनसे आप जन्नत में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बराए करम हमारे लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ करें कि हम में से हर एक मुकद्दस बन जाए, ताकि हम अपनी जिंदगियों के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे और एक दिन आपके साथ खुदावंद की बादशाही में शरीक हों। खुदा आपकी कायम करदा मसाली जिंदगी और उन दवाओं के जरिए जो आप अब उसके तख्त के सामने मांगते हैं, दुनिया पर फजल की कसरत नाजिल करे। खुदा के तमाम मुकद्दसीन हमारे लिए दुआ करें। आप सबको तमाम मुकद्दसीन की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।